Hello, Rona. How are you? Very well. That's great. That's great. So, sir, how are you? How is this lockdown treating you? Oh, well, lockdown has given us so many kinds of emotions by now. It's been 3.5 months. Yeah, because it began with, really feeling tragic about what was happening everywhere, the people falling sick and the deaths all over the world, the scare that it created, the fear of not wanting to go out and taking care of your family, your own survival, basically. Then it transitioned into being very patient because the lockdown just kept on increasing, of course, for our own safety. And then being in the confines of the home, multiple worries about work to extend. How do you get out? How do you work? How do you take things forward? And then now it has come to a stage where one is feeling, what do I make out of this lockdown? Do I do I do I reflect on the fact that I need to change myself so that I bring about a change in whatever I do now? Do I need to collaborate more with the planet than what I was earlier? Do I need to work with humanity far more than what I was working earlier? Do I need to contribute to humanity even more, which I did during the lockdown? But I felt, should that be only during a lockdown? Or should that be a culture that we create, that we are there for everybody more than ever than we had? So all these concerns and these thoughts are engulfing the mind at this point of time, because I think this entire pandemic is like a universal pause. You've been carrying on, just running and running and running, and suddenly everything has come to a standstill. Everything, literally. And this cannot be the power of a virus or one person or one country. It's big, it's mammoth. So I think there is a sense that is coming, and one is starting to think about the fact that, what is this universal pause? What are we supposed to make out of this? We can't go back as the way we were. Otherwise, we are doomed. We all have to change. Everything has to change. Otherwise, there's no way out of this. Yeah. I know. चलिए सर आपके अवरोध की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये रिएक्शन मुझे जानना है कि द मोमेंट आपके सामने आया कि आपके लिए एक ऐसा ऐसा स्क्रिप्ट आया है, पहला रिएक्शन क्या था आपका? एक तो था कि चूंकि ये जो किरदार मुझे दिया गया है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का है, तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बर्डन दैट कम्स with this character was very, very big, because it was not a biopic I was playing. I was playing a position in the government of India, and one of the largest and the biggest positions in the government of India. Security takes away the maximum amount of money and concern and time of the government of India and the policy making. For that, I was the advisor. So that is what struck me immediately, that this character cannot be played with ease. I have to play responsibility. I have to play burden. I'm not a person, or the character is not a person who can sleep. He never sleeps. When you are the advisor of security in a nation, you cannot sleep. You have to be awake all the time. So when all this came in the script, there was an excitement and also a bit of nervousness, because I felt this is something which is real life, and I'm going to be performing this. This is the same feeling what I felt in Talwar, where I was actually going to represent a real life character. Here I didn't represent a character. Yes, I was representing a real life responsibility, and that too of the nation. एक बहुत छोटी सी एक रिक्वेस्ट है सर, हम हिंदी में ज्यादा बात करें, विल दैट बी ओके? हाँ, ठीक है, चलिए। सर अगेन मैं आपके रोल की बात करती हूँ। अभी जो मैंने कहा ये ठीक है कि आप इसे, अच्छा चलिए। नो प्रॉब्लम सर एट ऑल। इस रोल ने सच में आपकी नींदें उड़ाई? जी हाँ, जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था तो उस वक्त नींदें उड़ाई, क्योंकि जब मैं रिसर्च करना शुरू किया इसके बारे में, अपने किरदार के बारे में, और जो कुछ भी उस वक्त उरी के दौरान हुआ, उस वक्त, और जो कुछ पढ़ाई की, जो कुछ लोगों ने कहा था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के जो स्पीचेस थे, उनको जब मैं सुना यूट्यूब पर और अलग अलग माध्यम से, तब मेरी नींदें उड़ गई, क्योंकि ये बात
सामने आना शुरू हो गया कि कितनी सारी बातें होती हैं जब आप एक निर्णय लेते हैं। इतने सारे एजेंसीज है एक एक देश के अंदर, जैसे आपका एक स्टेट पॉलिसी है, एक गवर्नमेंट इंटेलिजेंस है, एक और 3 आर्म्ड फोर्सेस आपके हैं। ये जो तमाम एजेंसीज हैं, इन सब के साथ एक ब्यूरोक्रेट को काम करना और सभी का निर्णय लेते हुए आप एक निर्णय पर पहुंचते हैं या तय करते हैं कि ये सबसे सही होगा। ये जो तमाम बातें हैं, इससे मेरी नींद उड़ गई, क्योंकि मुझे लगा अरे बाप रे, मतलब इतना सब कुछ करना पड़ता है जस्ट टू कम टू डिसीजन, इतनी सारी बातें। और ये करते वक्त भी आप एक तरह से आंसरेबल हैं। आप ये नहीं कि आपने अपने अपनी तरीके से, या ये आपका निजी निर्णय है, ये निर्णय देश के लिए है और देश के हित में होना चाहिए। अब ये सोचना बहुत ही बड़ा काम है। आप एज एन इंडिविजुअल कैसे सोच पाएंगे कि ये देश के हित में है? हो सकता है आप गलत हो सकते हैं, और यहाँ आप गलत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी की बात है। Correct. यहाँ आपने एक भी गलती की तो हजारों जानें जा सकती हैं। सर ऐसा तो ये जो बात है, जी सर, ऐसा रोल ये जो बात है, ये आपको लगता है कि हाँ, ये इन तमाम बातों को जब आप एक किरदार के अंदर डालना चाहते हैं, तब आपको बहुत काम करनी पड़ती है। आप हर सीन के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने लाइनों को देख लिया, आपने उसे याद कर लिया और फिर आपने कहा कि हाँ चलो ये इमोशन है, मैं इसके साथ काम, ये आप नहीं कर सकते। बहुत ही डिटेल में काम करना पड़ता है। सर ऐसा रोल प्ले करने के बाद मुझे ऐसा लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग, 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आपको सरकारी तंत्र से डर लगने लगता है कि बाप रे, इन लोगों को कैसे, हाउ डू दे वर्क, या फिर यू स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग 10 टाइम्स मोर। आपकी क्या फीलिंग? दोनों बातें, एक्चुअली दोनों बातें सही है। एक तो आपको लगता है कि बाप रे बाप, मतलब इतनी सारी बातें और ये तमाम चीजों को देखते, मद्देनजर रखते हुए आप हर कदम लेते हैं, हर कदम पर आपको ये चैलेंजेस आते हैं। और ये हर प्रोफेशन में नहीं है, लेकिन ये हर कदम पे जब आपको चैलेंजेस आती हैं। और दूसरी बात यह है कि आप सच में इनके प्रति जो श्रद्धा है, ये तो कहीं और 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और जिस तरह से ये काम करते हैं, देश के प्रति जो इनका लगाव है, जो प्रेम है, जिस तरह से वो अपने अंदर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते हैं, आत्मविश्वास की जो बात है, और देश को आगे रखना, हर बात पर देश आगे, हर बात पर देश आगे, अपनी जान को खतरे में रखकर आगे जाना, इतनी सारी बातें आप देखिए। तो इनके बारे में कहानियां बोलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऑडियंस तक इन बातों को पहुंचाना बहुत जरूरी है। इनका काम ये नहीं है कि एक बंदूक लेकर वो तैयारी करते हैं और चिल्लाते हैं, व्हाट्स द जोश। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स फार फार बियॉन्ड दैट। परिवारों को दूर छोड़ते हुए, अपने बच्चों को दूर छोड़ते हुए, 2 महीने के, 3 साल के बच्चे, आप समझ सकती हैं इमोशनली वो किस दौर से गुजर रहे हैं, और वहां भी वो देश को आगे रखते हैं। और देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर एज सिविलियंस। हम तो ऐसे जीते हैं जैसे कि कोई है ही नहीं सरहद के उस पार, जैसे कि सब कुछ साफ है, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ सेफ है, और हम हैं यहाँ पर 300 साल तक। Correct. हम ऐसे जीते। सो वी हैव टू कोलैबोरेट ना। हमें ये बातें जब समझ में आएगी, तभी हम अपना वक्त को रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, तभी देश को भी रिस्पेक्ट करेंगे, तभी ह्यूमैनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। कि वहां सरहद पे इतने सारे लोग हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए वहां पर लड़ रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, तभी हम रिस्पॉन्सिबल होना शुरू करेंगे। बिल्कुल। आपने आई एम श्योर 1999 का कारगिल वॉर भी अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, अभी उरी अटैक भी समझा है। कहाँ थे आप इस दोनों युद्ध या इस दोनों समय में, और आपकी क्या सोच है इन दोनों लड़ाइयों के बारे में या युद्ध के बारे में? मेरे ख्याल से दोनों को मैं एक ही प्लेटफॉर्म में रखता हूँ। अगर आप कारगिल को भी देखें या तो उरी को भी देखें, तो दोनों एक ही जज्बात पर है। दोनों का वजूद भी एक ही है, क्योंकि उस वक्त जो कुछ भी हुआ था कारगिल के दौरान और उरी के दौरान भी जो हुआ, हालांकि उसमें फर्क इतना है कि कारगिल और उरी के दरमियान एक फासला है, बहुत ही बड़ी फासला है, कई सालों का फासला है। लेकिन बात वही है, बात उन्हीं लोगों के साथ है जिनके साथ हम जूझ रहे हैं।
बिल्कुल। सो बात अलग नहीं है, वक्त अलग है। फर्क इतना है कि अब वी हैव बीन पुश्ड टू द वॉल। टेररिज्म की बात अगर करें तो उस वक्त और इस वक्त जो बातें हो रही है वो बहुत अलग है। अब हद पार कर चुके हैं लोग, और हमें भी एक तरीके से हम भी अपना पेशेंस खो बैठे हैं। अब कब तक हम इन चीजों को टॉलरेट करें? अग्री। हालांकि भारत ने कभी भी अपनी तरफ से किसी भी देश पर वार नहीं किया है। अपनी तरफ से कई देश तो ऐसे होते हैं जो खुद वार करते हैं, हमने ये नहीं किया है क्योंकि ये हमारे फिलोसफी में नहीं है, ये हमारी संस्कृति में नहीं है। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए उरी वॉज more emotional and more of losing your patience with what you're going through. You cannot be pushed to the wall like this. We have been patient, we have been having dialogues continuously, but you can't go to that extent. Again, I'm not blaming a country. No. This is terrorism. How you justify terrorism is another topic. We cannot talk about this right now because everything is because of humanity and us. When you don't keep, or when you are क्रिएटिंग, जब आप अपनी तरफ से एक देश दूसरे देश के ऊपर किसी भी तरह का आप नाजायज फायदा उठाते हैं या हमला करते हैं, तो वहां के लोग उठेंगे, वहां लोग आपकी तरफ बढ़ेंगे, आप पर वार करेंगे, चाहे वो आप उसे टेररिज्म कहें या वॉर कहें। ये तो बात होने वाली है। तो बात ये भी समझने की है कि ये कहां से आप पैदा करते हैं टेररिज्म, माओइस्ट एक्टिविटीज जिसको हम कहते हैं हमारे देश में, ये कहां से आता है? ये लोग ऐसा क्यों होते हैं? तो हम उन्हें तो नहीं ब्लेम कर सकते, बहुत सारी गलती तो हमारी भी है। तो इन सबको, अब जैसे मैंने कहा कि इनके बारे में तो हम बात नहीं कर पाएंगे अभी इस इंटरव्यू में, लेकिन ये बातें हैं। बिल्कुल। आपके तलवार से भी मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, आपकी हिचकी से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। मुझे सीरियसली हिचकी में लगा था एंड में ना आप जाके खराब टीचर निकलेंगे, बट इट वाज कंप्लीट। एंड ये ऐसे टीचर्स होते हैं। आपका फेवरेट टीचर कौन था, और उन्होंने आपको कभी मतलब स्कूल में कभी आपकी कान पकड़ के खड़े हो जाओ या फिर पिटाई या फिर ऐसा कभी कुछ हुआ आपके साथ? पनिशमेंट्स मिले थे बहुत सारे स्कूल में, खासकर जब मैं स्टैंडर्ड 3 से लेकर स्टैंडर्ड 6 या 7 की बात करें तो उस वक्त जाके आप खड़े हो जाओ वहां बाहर, दरवाजे के बाहर, या कान पकड़ के खड़े हो जाओ, या फिर डस्टबिन के अंदर खड़े हो जाओ, तो वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें होती थी उस वक्त। लेकिन वहां ऐसे जो स्ट्रिक्ट टीचर्स हैं वाडिया किस्म के, मैं एक जेजुइट स्कूल से आता हूँ, लोयोला हाई स्कूल जमशेदपुर से, और वहां पर जो हमारे टीचर्स थे वो पादरी थे, जो प्रीस्ट्स होते हैं, कैथोलिक प्रीस्ट। तो वो व्हाइट रोब्स वगैरह सब पहनते। तो मेन जो स्टाफ वो पादरी थे, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सब थे, बाकी तो नॉर्मल टीचर्स थे। तो उस वक्त जो कई सारे पादरी जो होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। हालांकि वो हैं प्रीस्ट्स, लेकिन स्ट्रिक्ट बहुत होते थे उस वक्त। तो हमें बहुत डर लगता था उनसे। वो उनको हम जब भी देखते थे उस कॉस्ट्यूम में, तो हमें लगता था कि अरे बाप रे, इनसे दूर रहो। भले ही हम बाकी टीचर्स के पास रहें, लेकिन इनसे दूर। और मेरे वक्त में, उस वक्त हमारे यहाँ एक पारसी टीचर भी थी, जैसे मिस्टर वाडिया थे वैसे एक मिसेस, मैं नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि मैं, जाहिर है वो ये सब देख रही होंगी। उस वक्त, हाँ, वो है अभी भी जमशेदपुर में, बहुत ही ओल्ड हो गई है वो, लेकिन वो भी थी उस वक्त। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। ये जो पारसी नाम होता ना, मैं खुद आधा पारसी हूँ, लेकिन मैं आधा उड़िया भी हूँ जी। मेरी मम्मी पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करती है। तो मैंने देखा है पारसी लोगों को, और खासकर पारसी मेल्स, पारसी फीमेल्स, कई लोग तो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। उनका एक अलग रवैया होता है और आपको डर लगता है, बिकॉज उनका डिसिप्लिन बहुत हाई होता है, और उनका इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी वगैरह, हर बात पर आप मजाक ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि सारे पारसी जैसे होते हैं, लेकिन कई सारों को मैंने जो देखा है स्कूल में, जो टीचर्स वगैरह जो बन के आते हैं, वो बड़े ही स्ट्रिक्ट होते हैं। हालांकि पारसी बहुत मजाकिया होते हैं, आप कई सारों को देखेंगे, वो आपको हंस हंस के आप लुटपुट हो जाएंगे उनको देखकर। बहुत ही दरिया दिल किस्म के लोग होते हैं वो भी, लेकिन जो स्ट्रिक्ट होते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। ओके, सो ये जो पारसी ब्लड है, कहीं इसी वजह से आपका पारसी थिएटर से शेक्सपियरियन थिएटर, ये वो वाली लाइन तो नहीं निकल गई थी आपकी? पता नहीं, शायद। लेकिन उड़िया, मेरे जो पापा है, मेरे पापा है उड़िया कम्युनिटी से, तो वहां मेरी परवरिश जो हुई है
वो उड़िया हाउस होल्ड में है। मैं इतना वक्त अपने नानी के साथ नहीं बिता पाया अच्छा। जितना मैं दादी के साथ बिताया। तो हम पले बड़े हैं एक उड़िया कम्युनिटी। सो थिएटर का प्यार फिर कब शुरू हुआ? बिकॉज व्हेन आई वाज रीडिंग, मैं स्टडी कर रही थी तब शेक्सपियर प्ले करना, इट्स टफ एट द सेम टाइम। नाटक करना मेरे ख्याल से स्कूल के दौरान जब मैं 10th में था उस वक्त एक लगाव धीरे धीरे आना शुरू हो गया था। और ये छोटे मोटे स्किट्स उस समय मैं कर रहा था। फिर कॉलेज आया और कॉलेज में हम लोग मूड इंडिगो आए थे, पूना से बंबई आए थे, पवई में, आईआईटी पवई। तो वहां एक नेशनल कंपटीशन वो लोग रखते हैं मूड इंडिगो के नाम से, हर साल ये होता है। जी जी तो जी। वहां हम गए, वहां हमें बेस्ट सेकंड बेस्ट प्रोडक्शन का एक पुरस्कार भी मिला और मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल गया। तो वो एक अलग से एक जिसको हम कहते हैं एक चिंगारी, वो उठी उस वक्त। और वो मैं अपने जहन में लिए पूना वापस लौटा। और उसके बाद मेरे ख्याल से, चूंकि मैं पूना में था और जहां मैं पढ़ाई कर रहा था अपनी कॉलेज की पढ़ाई, वो फिल्म इंस्टीट्यूट से मेरे ख्याल से 1 या 2 किलोमीटर की दूरी में थी। तो मेरे लिए वहां जाकर फिल्में देखना थोड़ा सा आसान हो गया था। वहां नेशनल फिल्म आर्काइव्स भी, तो वहां जाकर मैं फिल्में देखता था हर शाम को। वहां धीरे 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 एक अलग सा दुनिया बुनना शुरू हो गया वहां मेरे लिए। फिल्मों की दुनिया, वर्ल्ड सिनेमा, एक्टिंग, पढ़ाई करने लगा, लाइब्रेरी गया, किताबों को देखने लगा। मुझे कतई नहीं मालूम था कि एक्टिंग में आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त मैं कमर्शियल हीरोज को देख रहा था, जितेंद्र साहब, मिथुन चक्रवर्ती। कभी नहीं सोचा था कि ये करने के लिए मैं पढ़ूं क्यों, इसमें पढ़ाई कहाँ है। फिर मैंने नसीरुद्दीन शाह साहब को देखा था मासूम में, और तब मुझे लगने लगा कि अरे बाप रे, हाँ ये तो किसी और लेवल की परफॉर्मर है और ये कहानी अलग है, इनका परफॉर्मेंस ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखा था। तब मुझे बात समझ में आई धीरे धीरे करके कि नहीं भाई, इसमें पढ़ाई है, इसमें टेक्निक है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में उस वक्त सुना कि ऐसा एक इंस्टीट्यूट है जहां लोग पढ़ते हैं एक्टिंग के बारे में, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वहां से बात शुरू हुई और फिर मैं थिएटर करने लगा। बहुत सारा थिएटर किया, मजबूरन उस वक्त करना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं तो फिल्म्स करना चाह रहा था। लेकिन चूंकि कोई काम ही नहीं मिला मुझे, हालांकि मैं ऑडिशंस लगातार कर रहा था, लेकिन ना सीरियल्स में काम मिल रहा था ना फिल्मों में। ऑडिशन के बाद ऑडिशन कई साल तक मैंने किया। तो तब मुझे लगा कि नहीं, अब तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। मतलब सर्वाइवल के लिए मैं बहुत सारा काम करना शुरू कर दिया था, अलग अलग किस्म का काम करता था उस वक्त, जस्ट पैसे कमाने के लिए। और साथ साथ थिएटर करना शुरू कर दिया, शाम के वक्त थिएटर करता था, लगातार किया। फिर मैंने अपना एक ग्रुप भी खोला, उस पे मैंने एक प्ले भी डायरेक्ट की। तो ये तो सिलसिला चलता रहा। उसके बाद धीरे 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 फिर 2010 या 2011 में शिप ऑफ थीसिस करने का मौका मुझे मिला, तब फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, एक एक बहुत, मे बी आई एम रॉन्ग, बट एक जो थिएटर पर्सन होता है उसको 10th रो के बारे में सोचना होता है, जबकि एक फिल्म एक्टर को, या फॉर दैट मैटर एनीबडी हु इज ऑन कैमरा, उसको 10th रो का बिल्कुल नहीं सोचना होता है। यू हैव टू cool down while giving away your reactions. Was it a problem? वो प्रॉब्लम आपने फेस की? In 1997 I did a film called The Last Vision. ये this was ओडिया फीचर फिल्म, एनएफडीसी ने इसे प्रोड्यूस किया था और मिस्टर ए.के. बीर ने डायरेक्ट किया था, इसके निर्देशक थे वो। उस दौरान जब मैं काम कर रहा था, उस वक्त मैं बड़ा डरा हुआ था, क्योंकि थिएटर में ट्रेन होके आया था मैं, और यहाँ पर ये कह रहे थे कि ऐसे लाउड परफॉर्मेंसेस और एक्सप्रेशंस और वॉइसेस यहाँ नहीं चलेगी, आपको धीरे धीरे, आपको बिल्कुल यू हैव टू रिड्यूस एवरीथिंग, फ्रेम के दायरे में आइए, आपके पास लेपेल माइक है, एक बूम है, तो हम तो सुन पा रहे हैं आपको, आप इतने जोर से क्यों बातें कर रहे हैं। तो ये तमाम बातों को मैं उस वक्त समझना शुरू किया। और उसके बाद दोबारा फिर मुझे कोई काम नहीं मिला, कुछ 14-15 साल तक वापस कोई काम नहीं था। तब जब मैं शिप ऑफ थीसिस किया, तब तक मैं काफी कुछ समझ गया था इस मीडियम के बारे में, तब दिक्कत नहीं हुई मुझे, तब काम करना शुरू कर दिया था मैंने। बट हाँ, ये फर्क है, 10th रो के बारे में आपको सोचना पड़ता। और उसके बाद देखिए, फिल्म करते करते, ओटीटी करते करते, जब मैं नसीर साहब के साथ मैंने एक प्ले किया द फादर 2 साल पहले,
तब बिल्कुल विपरीत बात हो गई, क्योंकि मैं उस वक्त, क्योंकि मैं अकस्टम्ड था लेपेल माइक्स, बूम ये सब लेकर, मेरी आवाज भी बहुत धीमी हो गई थी, मेरे परफॉर्मेंसेस एक फ्रेम के अंदर। तो उस वक्त नफीस साहब कह रहे थे, भाई ये नहीं चलेगी, आपको आप स्टेज पर वापस आइए, यू हैव टू। तो वो तो ये दोनों बातें हो गई मेरे साथ। लाइफ टॉट यू वेरी डिफरेंट लेसन। एक बार फिर से फिल्म की हम बात करते हैं। उरी अटैक सर्टेनली लोगों को बहुत मूव करके गया है। सो फिल्म देखी है आपने या बुक पढ़ी आपने होमवर्क के लिए कुछ किया? फिल्म तो मैंने देखी थी, लेकिन उस दौरान नहीं, उसके बाद, शूट के बाद मैंने न देखना पसंद किया। मुझे बोला गया था कि आप देख लीजिए, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कहानी के बारे में भी, परफॉर्मेंसेस तो अलग बात है, वहाँ काफी यंग परफॉर्मर्स थे, लेकिन कहानी के बारे में मुझे फिल्म के जरिए से नहीं जानना था, मुझे पढ़ के समझना था कि कौन सी बातें हुई थी उस वक्त, क्योंकि फिल्म जो भी आप कहें, कहीं ना कहीं फिक्शनलाइज उसको किया जाता है, ड्रामेटाइज किया जाता है फॉर द ऑडियंसेस। तो वो एक तरह से जो पूरी हकीकत है उस कहानी की, उसे अगर आपको समझना है या पाना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, रियल फैक्ट्स। तो मैंने पढ़ना जरूरी समझा। अजित डोवल साहब से लेकर उनसे पहले के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स थे उनके बारे में पढ़ा, जितने भी आर्टिकल्स थे उनके स्पीचेस के बारे में पढ़ा, उनके ऊपर फिल्माया गया जो कुछ भी है उन सबको देखा, उनके स्पीचेस जो टेलीवाइज्ड थे उन्हें भी देखा, दोबारा 3 बार 4 बार उन्हें देखा, सुना उन्हें। ये भी समझने का मौका मिला कि उन्होंने जो डिसीजंस लिए, जो निर्णय लिए थे, वो सोच विचार किस तरीके से उन्होंने किया था, ये तमाम बातें जानना बहुत जरूरी था उस वक्त। तो इन तमाम बातों को जब आप समझ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप फिजिकली आप ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर जाते हैं। दो तरीके होते हैं एक एक्टर के लिए। एक होता है कि आप फिजिकली आप पहले ट्रांसफॉर्म होते हैं और फिर आप इंटरनल जाते हैं। एक होता है कि आप मन पर, मानसिक स्थिति जो किरदार का है और जो साइकी है, आप उसको लेकर काम करते हैं और ऑटोमेटिक आपका एक फिजिकलिटी बनता जाता है आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ये हुआ, जब मैंने पढ़ाई की, बातों को समझा, स्क्रिप्ट को भी बहुत बार पढ़ा, ऑटोमेटिकली एक किरदार बनना शुरू हो गया मेरे अंदर, और बाहर से भी मैं इस चीज को महसूस करना शुरू कर दिया था। तो जिसको मैं कहता हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, तो धीरे धीरे कंधों का एक प्रकार का झुकना, ये नहीं कि फिजिकली मैंने ऐसे किया, ये साइकोलॉजिकली जब आप तैयार करते हैं कुछ भी तो ऑटोमेटिकली ये जो फ्लो है ये पूरे शरीर के अंदर आपका फैल जाता है। और इसके लिए एज एन एक्टर आपको बहुत ही फिजिकली सेंसिटिव होना पड़ेगा। इसलिए हमें मार्शल आर्ट्स, क्लासिकल फॉर्म्स, योगा, ये सब लगातार करना पड़ता है, नॉट जिम, नॉट वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग से आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं, आपके वेन्स के बीच के जो मेरिडियंस हैं जहां से इमोशंस फ्लो करते हैं वो सब टाइट हो जाते हैं, तो आप चीजों को महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए फ्लूइड मूवमेंट्स, मार्शल फॉर्म्स, क्लासिकल डांस वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब का आपको प्रैक्टिस रोजाना ये करना, ये आपका रियाज है। तब जाकर आपका शरीर जो है वो सेंसिटिव हो जाता है, तब आप इन चीजों को इम्बाइब, जो भी आप सोचते समझते हैं, ऑटोमेटिकली आपका शरीर उसे ले लेता है और धीरे धीरे आप ट्रांसफॉर्म करना शुरू करते हैं। अच्छा, एक जाते जाते लास्ट सवाल आपसे, क्या आपका अजीत साहब से मिलना हुआ? जी नहीं, अनफॉर्चुनेटली नॉट। आई विश आई हैड मेट हिम, बट नहीं हो पाई। चलिए, वी आल्सो विश दैट आप मिले। एंड थैंक्स अ लॉट, सीरियसली बहुत मजा आया, थिएटर की बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, फन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू।